आप पागल So ना हो इसलिए आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। अर्जुन yes. तुम मानोगे नहीं, आई हैव सीन अ 7-year-old चाइल्ड इन डिप्रेशन बिकॉज ऑफ हेरिडिटरी। अगर ये Hmm. बिल्कुल इतना होता तो ठीक है, दिस इज माइल्ड, और ये भर गया होता तो Hmm. हम कहते दिस इज अ सीवियर डिप्रेशन। हमें इतना वक्त इसे लगता है क्योंकि हमें एक ग्लैमराइज वर्ल्ड में ये समझाया गया दैट if you will not do this, you are weak, you are not doing this, you are weak, you are not doing this, you are Hmm. not strong enough for this. So hello everyone, welcome back to another amazing episode of our podcast. तो सारे पॉडकास्ट जो कि अभी इसके पहले हुए हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे और आज का पॉडकास्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट्स में भी पिन्ड है एंड podcast is also uploaded on Spotify, so you can also listen it from there. So just a small intro of our guest and then we will start. So ma'am, just a small intro and after that we'll start it. Hello everyone. Hi, I'm Dr. Anusha, and I do little Instagram sometimes. So that is Dr. Shaira is a page, and I am a neuropsychiatrist. I've done my MBBS from Rajkot and MD degree from Jamnagar. I love educating people. Awareness is my thing. और बस लोगों से जुड़ना, उनसे बातें बातें करना, इसीलिए हम अर्जुन से आज जुड़े हुए हैं. So I hope we help you out that way. Yeah, thank you very much for joining us on our podcast. And I guess कि आज का podcast काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर द व्यूअर्स क्योंकि आज हम कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि मेनली बात नहीं की जाती है. एंड yeah, that is also कि awareness is very important at this point of time. So let's start the podcast with a very simple question. Like, ma'am, आपका field. So tell us about your field and scope and क्या चल रहा है in India about this field because we know about psychology. Many people know about psychology and neurology, but this is neuropsychiatry. So it's just a field that is so unique to many people. Also unique to me क्योंकि जब मैंने पहली बार देखा था तो I was like it is a combination of two branches. So it's just कि आप इसे थोड़ा सा simply explain करिए what is it all about. Okay. So when we talk about first there are three questions उसमें divide करते हैं. What is neuropsychiatry? What are we talking about? So जो neurologist होते हैं they actually deal with the hardware of the brain. Hardware. Like there is a stroke है या कोई blockage है, there is some Huntington difficult कुछ diseases हैं जो hardware है, जैसे कंप्यूटर का Yeah. hardware खराब होगा. So the brain का hardware, if there is an issue, you will go to a neurologist. एंड इफ देर इज अ सॉफ्टवेयर इशू, सॉफ्टवेयर में आपके आते हैं कॉग्निशन की, आप अंडरस्टैंडिंग कैसे है, आपके एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आपके बिहेवियर क्या है. साइकेट्री डील्स विद ऑल दिस, आपका एडिक्शन पोटेंशियल, आपके सेक्सुअल Yeah. डिसफंक्शन इश्यूज. सो साइकेट्री इज बेसिकली अ सॉफ्टवेयर ऑफ द ब्रेन दैट डील्स विद ऑल दिस थिंग्स. इसीलिए उसमें जो बेसिक चीजें जो इंसान साइकेट्री के थ्रू या न्यूरोसाइकेट्री में हम लोग काउंट करते हैं, दैट इज फर्स्ट मेंटल हेल्थ. Yeah. Second, sexual health, because most issues are psychological. And third is de-addiction. Okay, de-addiction, because de-addiction में आपका चाहे gambling है, pornographic addiction है, आपका alcohol है, nicotine है, गांजा है. So that part is जो आपका आएगा वो सारा आपका आएगा न्यूरोसाइकेट्री में. ऑफ कोर्स ADHD, लाइक चाइल्ड साइकेट्री में Exactly. ADHD है, ऑटिज्म है, ADHD. इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है. सो ये सारी चीजें आपकी न्यूरोसाइकेट्री के होराइजन में आती है. सो एंड स्कोप इज, इंडिया में अभी जो साइकेट्रिस्ट हैं they are 0.9 per lakh population, which is very less. Per lakh Exactly. population at least 3 होने चाहिए. We have lot of scope. ग्रो इसलिए नहीं कर पा रहा था इनिशियल ईयर्स में बिकॉज स्टिग्मा, एंड हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव लोगों के बहुत सारे मेथड्स है. लोग भुआ के पास चले जाएंगे, क्वैकरी के पास चले जाएंगे, तांत्रिकों के पास चले जाएंगे. दे विल स्पेंड लॉट ऑफ मनी इन दैट एंड दे डोंट अंडरस्टैंड Psychiatrist दैट के पास दिस नहीं इज, आएंगे. and they Yeah. don't understand this is science. So yeah, that is one of the reasons that it Exactly. is in that stage. But yeah, after COVID hit, उसके बाद जो growth हमने देखी है दुनिया में, and the understanding we have seen that people are understanding that psychiatry क्या है और mental health issues जो हैं उनको importance देना क्यों जरूरी है. It has completely changed the picture that I have seen in young people, millennials, Gen Z, and I'm very fascinated to see the change.
quite frankly. Yeah, exactly. Okay, so I have done one podcast with like anxiety attacks, panic attacks. इस पे मैंने एक podcast किया था with Arjun Gupta. He's also a therapist, if you know about him. And Okay. so हमने वहाँ पर बात किया था panic attacks, anxiety attacks and all. So आज भी हम start थोड़ा सा वैसे ही करते हैं because it is a thing जिससे काफी सारे लोग परेशान रहते हैं, but many of them are not aware of these things. तो हम थोड़ा-सा ऐसा बात करेंगे कि लाइक हाउ डू कंडीशंस लाइक एंग्जायटी और डिप्रेशन अफेक्ट आवर ब्रेन? लाइक व्हाट रोल डज़ न्यूरोसाइकियाट्री प्ले इन दैट ट्रीटमेंट? क्योंकि वी नो अबाउट साइकोलॉजी, वी नो अबाउट साइकियाट्री, बट हाउ न्यूरोसाइकियाट्री प्लेज द रोल इन दैट particular space? Okay. Psychiatry is neuropsychiatry. First, we have to understand they are both the Okay. same things. When we are talking about Okay. psychiatry, it's actually a neuropsychiatry because you are dealing with brain. Exactly. Okay? It is just a misnomer. You can use it. You can call it neuropsychiatry. You can call it psychiatry. Okay. ठीक So है? there is अब no need there's no there is no difference. need कि हम उसे डिफरेंस करके दिखाएं. No, It's no. like कि okay. Yeah. आप नैन कहो, Okay. आंखें कहो, it's just a synonym. So what's the difference between like neurologist, जो neurologist होते हैं वो कैसे different होते हैं? Again, as I said, neurology is like a hardware. Like किसी को stroke आया, जैसे paralysis हुआ, ठीक है? Okay. लकवा मार गया, आधी बॉडी काम नहीं कर रही है, तो आप किसके पास जाओगे? आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे. Exactly. ठीक है. अगर किसी को एक मूवमेंट डिसऑर्डर होता है जिसमें अलग अलग मूवमेंट्स होने लगते हैं, तो आप किसके पास जाओगे? आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाओगे. आपको दौरे पड़ने की बीमारी है जिसे एपिलेप्सी बोलते हैं. ये जो बीमारी है दोनों डील करते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट दोनों उसमें होराइजन में आते हैं. लेकिन अगर ब्रेन में कुछ खून नहीं पहुंच रहा है या कोई लेजन है या ट्यूमर है, उस तरह का डिसफंक्शन है या आपके न्यूरॉन्स में कुछ इश्यूज है, तो दैट विल कम इन न्यूरोलॉजिस्ट. अगर हम बात कर रहे हैं साइकियाट्री की, आपके इस वाले डोमेन में क्या आएगा? मेंटल हेल्थ, जिसमें आता है आपका एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, स्किज़ोफ्रेनिया, एडीएचडी, ऑटिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड ऑल, जैसे डिसलेक्सिया. ठीक है, हमने ये तारे ज़मीन पर देखी थी. ठीक है, सो ये सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज या सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं, वो आपके साइकियाट्री में आते हैं. या डी एडिक्शन, कि दारू छुड़वाना है, बीड़ी छुड़वाना है, सिगरेट छुड़वाना है, गांजा छुड़वाना है. ठीक है, हीरोइन कोकेन का जो पेशेंट है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स जो होते हैं, ये सारे साइकियाट्रिस्ट डील करते हैं. दिस इज ऑल्सो अ ब्रेन. ठीक है, सो एक सॉफ्टवेयर वाला इशू एंड दैट इज हार्डवेयर वाला इशू. सो दैट्स हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द टू. And the another question that you have asked me, depression and anxiety, how does it change your brain, and why do we need a psychiatrist in such things? Exactly. ठीक है. So देखिए, बात ऐसी है कि जब आपको यहाँ पे चोट लगी, ठीक है, आप यहाँ से गिर गए, यहाँ पे सिर्फ खरोच आई थी. ठीक है, तो अगर खरोच आई है या फिर हल्का सा स्किन टियर हुआ है, तो आप खाली टांके ले लोगे, स्टिचेस. So that is like a psychologist, कि उन्होंने थेरेपी की, थोड़ी सी दिक्कत थी और उन्होंने उसको कहा कि भाई 7 दिन आराम करो, ये चीजें करनी है, इसके ऊपर ये एंटीसेप्टिक लगाना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है. So that is how mild anxiety and mild depression या mild to moderate anxiety या depression में you will do a therapy. Therapy भी is a scientific model जिसमें हम बोलते हैं cognitive behavior therapy. Cognitive related to brain. जो आपकी अंडरस्टैंडिंग पे काम करेगी, उस अंडरस्टैंडिंग की वजह से बिहेवियर में चेंज इज थेरेपी. आप खाली बातें कर रहे हैं, उसको थेरेपी नहीं कहते हैं. ठीक है, वो आप अपने पेरेंट्स से कर रहे हैं, फ्रेंड से कर रहे हैं, आपने फोन किया, भाई क्या कर रहा है, दैट इज नॉट थेरेपी. बारिश में गए, दैट इज नॉट थेरेपी. एक अच्छी चाय टपरी पे पी ली, दैट इज नॉट थेरेपी. ओके, सो दैट इज नॉट थेरेपी. थेरेपी इज अ वर्ड जो कि बहुत कॉमन हो गया है, लोग कहीं पे भी कभी भी यूज कर देते हैं. Which is good for people to understand and awareness. हर एक चीज का pros and cons होता है. We have that is also right. Yeah, okay. So क्योंकि आज के टाइम में that exactly, and आज के टाइम में it is like a taboo, and this is the thing जो कि मैंने पहले भी पॉडकास्ट में डिस्कस किया कि why it is like कि लोग थेरेपी में जाने से पहले बोलते हैं कि हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास, बट दे नेवर ओपनड इट एज कि हम थेरेपी जा रहे हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि लोग हमें पागल कहने लगेंगे. दैट इज अ वेरी कॉमन थिंग, एंड ये चीज मैंने पुराने पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, एंड दैट इज द थिंग दैट आई ऑब्जर्व, आई एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट.
कि I मैं understand. लोगों को देखता हूँ कि लाइक दे से कि हम थेरेपिस्ट के पास थोड़ी जाएँगे, हम पागल थोड़ी हैं। इट्स नॉट लाइक कि आप पागल हैं तभी आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं। आप पागल सो ना हो इसलिए आप थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। या आप पागल ना हो दैट्स व्हाई आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हैं, दैट इज़ द पॉइंट। Yeah. या So थेरेपिस्ट जो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट जिनको बोलते हैं हम लोग, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं या काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, दे आर द हुँ, पीपल जिन्होंने आपका एमफिल किया हुआ होगा या फिर उसके अंदर क्लिनिकल साइकोलॉजी उन्होंने पढ़ा होगा। और जो डॉक्टर्स होते हैं वो एमबीबीएस एमडी होते हैं। दे कैन प्रिस्क्राइब, हुँ, दे कैन गिव यू मेडिसिन एंड दे कैन हेल्प यू विद अ थेरेपी। दे डू बोथ and they can diagnose your, ओके, of course you will diagnose and then only you can prescribe medicines, right? ओके। So सो they will, बेसिकली साइकोलॉजिस्ट जिस वे से जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी उसी वे से होकर जाते हैं बट थोड़ा आगे, लाइक इतना लेवल पे कि see, ओके, psychologist is the person who has studied psychology, ओके। ठीक है, the brain human psychology. And हुँ, psychiatrists are the person who have studied human body, they have studied all the MBBS के सारे subjects, biochemistry, anatomy, हुँ, surgery, gynae, all the subjects, and then they have हुँ, their masters in specialization in psychiatry, where हुँ, they are able to understand your body, your hormones, your neurotransmitters, your body structures, your anatomy, and understanding why you हुँ, are feeling what you're feeling, and then diagnosing ओके, you and helping you out with the therapy and the treatment according to the severity of the डिसऑर्डर कितना ओके। सीवियर है। सेम थिंग जैसे हम, या या सेम थिंग आई हैव सेड कि लाइक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक ऐसा लेते हैं कि आप वो मेडिसिन्स प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। उन्होंने या लाइक जितने भी टाइम की उनकी डिग्री होती है, लाइक दे स्टडी द ह्यूमन ब्रेन साइकोलॉजी, क्लिनिकल या साइकोलॉजी। सो या एंड द साइकियाट्रिस्ट इज़ द पर्सन जो कि मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकता है और वो आपकी पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ता है। सो इट्स अ वे कि हम साइकोलॉजिस्ट को एक साइकियाट्रिस्ट के सबसेट में ले सकते हैं। या या हुँ, एग्जैक्टली, ओके, वी नीड ओके, बोथ ऑफ देम, बट या दे आर एग्ज़ैक्टली। डिफरेंट। और हुँ, जैसे हमने कहा कि स्टिचेस लगाया, सो दैट इज माइल्ड है ना, तो उसके लिए यू कैन हुँ, जस्ट गो टू अ थेरेपिस्ट, दे विल गाइड यू, दे विल हेल्प यू आउट फिगरिंग आउट कि व्हाट यू आर फेसिंग, दैट इज हुँ, अ साइकोलॉजिस्ट। अब यहाँ पे हुँ, टूट गई आपकी हड्डी, हुँ, ठीक है, कार्पल टनल, आपका हड्डी टूट गया है यहाँ पे, ठीक है। अभी ये हुँ, हड्डी तोड़ने टूट गई है तो आप उसको जो है खाली स्टिचेस से तो नहीं लोगे, जख्म जो है वो एग्ज़ैक्टली। बड़ा है, ठीक है, पूरा। हुँ, ये मसल टियर हो गया है, टेंडन टियर हो गया है, बोन हुँ, आपका सारा ब्रेक है, तो क्या करोगे? ठीक है, पहले तो आपको जो फिर है प्लास्टर भी चाहिए, आपको स्टिचेस भी लेना हुँ, है, आपको उसका मरहम भी करना है, उसका टेंडन टियर को भी ठीक करना है। व्हाट इज दैट? वो आपका मॉडरेट टू या सीवियर है। जब इंसान को हुँ, सीवियर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, वो सुसाइडल है, उसको रात भर नींद नहीं आती है, एंड दे जस्ट कैन नॉट लिव अराउंड पीपल, उनको अकेले रहना पसंद है, या फिर वो उस शोर में नहीं रह पा रहे हैं, ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ वेट। एंड एट दैट सिचुएशन व्हेन पर्सन इज सिवियर, कि वो लिटरली हुँ, ट्रेन पे जाके खड़ा हुआ है कि वो पटरी पे जाए मर जाए, इस हालत में, इस ज्यादा हुँ, तकलीफ वाली हालत में, वो जो पेशेंट है या वो जो पर्सन है, उस हालत में थेरेपी विल नॉट वर्क। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, इन दैट यू हैव टू फर्स्ट हैव अ फ्रैक्चर। उसको आपको हुँ, उसको जो है 3 हफ्ते का रेस्ट देते हैं हम, 2 महीने का भी होता है, हुँ, कौन सा बोन है उस पर डिपेंड करेगा, अगेन किस तरह की हालत है हुँ, उस पर डिपेंड करेगा। इन दैट केस लेट द पर्सन इम्प्रूव अ बिट, वो ठीक हो जाए, फिर धीरे धीरे हम उसको थेरेपी पे ले लेते हैं, जैसे सीवियरिटी रिड्यूस होती चली जाती है। ओके, ओके, तो थेरेपी इज लाइक अ फिजियोथेरेपी। जैसे एक ओके, यहाँ पे फ्रोजन शोल्डर है या फिर ये बोन टूट गया है, तो पहले तुम उसको ट्रीट हुँ, करोगे, फिर कहोगे साइकोलॉजिस्ट को या फिर जैसे फिजियोथेरेपिस्ट को, भाई यू वी नीड अ physiotherapy हुँ, so that it works properly. So that's how psychology, yeah, एंड psychologists या work, and that's how psychiatrists work. They both have important role, but on a different stages हुँ। of life. सो इट्स लाइक कि हमने ये जान लिया कि साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट में डिफरेंस क्या होता है एग्जैक्ट एंड नाउ गेट इनटू इट कि जो एंजाइटी और डिप्रेशन होता है एक्चुअली में वो वर्क कैसे करता है, क्योंकि इट इज़ अ स्टडी कि मिलियंस ऑफ पीपल हैं जिनको डिप्रेशन है बट दे डोंट नो अबाउट इट एंड एक्चुअली दे डोंट इवन ट्राई टू एक्सेप्ट इट बिकॉज दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट। लोग कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन कैसे हो सकता है, बट दे आर डिप्रेस्ड बट दे डोंट नो अबाउट इट। ये एक स्टडी है, आई गेस मैंने ये पढ़ा था। सो हाउ टू नो कि आपको डिप्रेशन है, या फिर हम कैसे जाने कि हमारे किसी लव्ड वन को ऐसा कुछ है, एंड ऑल्सो एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक्स, ये सब
कैसे इनसे डील किया जाए? बिकॉज़ हम क्या होता है ये तो हम समझ जाएँगे कि पहले आइडेंटिफ़ाई कैसे किया जाए ये जानते हैं। उसके बाद हम ये समझते हैं कि अगर हमारे सामने किसी के साथ हो रहा है तो हम उसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? Okay, so let's understand that depression and anxiety are two different disorders. They are very different. Okay, first thing, हुँ, depression जो है उसके बारे में हम पहले समझते हैं कि what when we are talking about that the person is having this depression, it is major depressive disorder. ठीक है, हुँ, उसकी सिवियरिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये पानी का ग्लास है, अभी जिस हालत में है ये मॉडरेट है। अगर ये हुँ, बिल्कुल इतना होता तो ठीक है, दिस इज माइल्ड, और ये भर गया होता तो हुँ, हम कहते हैं दिस इज अ सीवियर डिप्रेशन। ओके, या, सो हम या, अब जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं कि डिप्रेशन क्या है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तो हुँ, डिप्रेशन दोनों कारणों की वजह से हो सकता है। अगर आपके फैमिली ओके, में डिप्रेशन है, जिसको हम कहेंगे जेनेटिक्स जो है आपका, हेरिडिटरी, ओके, उसकी वजह से भी ओके, डिप्रेशन हो सकता है। सेकंड, ओके, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के ट्रिगर्स हो सकते हैं, जैसे जॉब का चले जाना, डिवोर्स, ओके, ठीक है, ओके, लूजिंग अ चाइल्ड, प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम, है ना, एंड मेनोपॉज ओके, इज वन ऑफ द रीजन, ओल्ड या, एज, रिटायरमेंट, हुँ, हुँ, accidents, and having a very हुँ, chronic disease. ठीक है, chronic disease can be ओके, hypertension, and chronic disease like diabetes, cancer. ठीक है, हुँ, these are also the कारण। ठीक है, ओके, हमने समझा कि क्यों क्यों हो सकता है, हेरिडिटरी फैमिली में रन कर रहा है, एनवायरमेंट की वजह से, और ये दोनों कारण है तो चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओके, सो हो सकता है कि इंसान की जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं हो, कोई भी तकलीफ नहीं हुँ, हो, ट्रिगर्स नहीं हो, एंड द पर्सन इज स्टिल डिप्रेस्ड। Why? ओके, Hereditary, family genetics, okay, and या, the brain। ठीक है, you can have ओके, those neurotransmitters जो आपकी बॉडी में कम हो गए हैं, जैसे कि खाली हम लोग पहले सुनते थे कि रसायन जिसे हम कहेंगे, दे आर लेस केमिकली, न्यूरोट्रांसमीटर्स, या, ब्रेन के ओके, केमिकल्स, ठीक है, जो एक दूसरे से बात करवाते हैं न्यूरॉन्स को। एग्ज़ैक्टली, दो न्यूरॉन्स एग्ज़ैक्टली, आपस में कैसे बात करेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर्स की वजह से, और या, उनके अंदर एफिशिएंसी नहीं है तो दे विल गो डाउन, और वो रिड्यूस हो जाएंगे, तो पर्सन हुँ, विल स्टार्ट फीलिंग द थिंग्स बिकॉज योर डिप्रेस्ड, ब्रेन इज टॉकिंग continuously ओके, and it's not talking properly. Why the neurotransmitters are not working efficiently? Why? Lot ओके, of karan. Again, hereditary लाइक and लाइक दिस इज़ द थिंग कि environment. लाइक दिस इज़ द थिंग कि डिप्रेशन इज़ हेरिडिटरी। दिस इज़ द थिंग जो मैंने आज शायद लाइक हम ऐसा कौन सोचता है कि लाइक लोग सोचते हैं कि डिप्रेशन इज़ समथिंग जो कि लोग बाद में एक्वायर करते हैं। बट Yeah. दिस इज़ जेनेटिकली इस पे इफ़ेक्ट पड़ता है दैट इज़ अ वेरी यूनिक थिंग टू Arjun, डिस्कस। तुम मानोगे नहीं, I have seen a 7-year-old child in depression because of hereditary. We have treated the child. ओके, इट इज़ Okay? इंटरेस्टिंग। It सो is. लाइक It is. अ, अगर थोड़ा-सा आप डिस्कस करना चाहें कि लाइक एग्ज़ैक्टली क्या था वो? सो कैन वी Okay, so the child is 7-8 year old child. वो ठीक से खा नहीं रहा है, बात नहीं करता है, अकेले अकेले रहना चालू उसने कर दिया। उसको कुछ भी बोलो तो उसको बहुत गुस्सा आता है, इज वेरी एंग्री ऑल द टाइम, इज नॉट टॉकिंग ओके, प्रॉपरली, वो टैंट्रम्स कर रहा है कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। एंड द चाइल्ड वाज अ वेरी गुड चाइल्ड, वेरी ओके, पॉयस चाइल्ड, और जैसे छोटे बच्चे होते हैं थोड़ी बहुत हुँ, शरारती करते हैं, ये सब करते हैं, बट नो, नाउ उसका बिहेवियर सिंस 7 months बिल्कुल चेंज हो गया है। लाइफ में कोई ट्रिगर नहीं है, सब कुछ अच्छा है, कोई ओके, बुलिंग का हिस्ट्री नहीं है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, इन्वॉल्व होते हैं, एवरीथिंग वाज गुड। एंड सडनली द ओके, चाइल्ड इन 7 months, हमको पीडियाट्रिक से फोन आता था, वी थिंक एवरीथिंग इज गुड, ऑल द लैब रिपोर्ट्स, द स्कैन्स and the reports are normal, but the child is behaving certain way. We scanned the child for ADHD and autism, and उसका IQ क्या, everything was normal, but the child has ओके, it कि वो पूरा दिन सोता रहेगा, वो उठेगा नहीं, वो 12-13 घंटे नींद में था, सोते ही रहता हुँ, है, एंड वो किसी से बात नहीं कर रहा है, उसको कुछ बोलो तो झंझन आ जाता है, गुस्से में रहता है, हुँ, and he was losing weight. We don't know why he is losing weight. He does not like to ओके, eat. उसको बोलो तो वो खाना ऐसे फेंक देगा, एंड उसका अटेंशन हुँ, स्पैन बहुत रिड्यूस हो गया था, वो इधर से उधर भागने लग जाता था। सो दैट ओके, वाज डिप्रेशन. The ओके, child was suffering from depression because, and then we ओके, saw what happened. The mother has depression during pregnancy, and हुँ, जो father थे उनके family में भी उनके कोई uncle थे, he also had episodes of severe depression in past. So we ओके, realized that okay, the links are there.
There is no trigger, but Hmm. the child is having a depression because of genetics. Okay, so अगर ये genetically होता है, like ये hereditary It में can होता है. be. It can be Okay, genetics. Okay. it can be exactly. Yeah. There may be a reasons कि वो बिना genetics के. Yeah. We have to Yeah. see the whole So picture. ओके, सो आपने जैसे बताया कि जो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनमें कमी Hmm. होती है। सो बेसिकली Hmm. जो साइनैप्स के थ्रू सिग्नल्स जाते हैं, वो नहीं हो पाता है कंप्लीटली अच्छी तरीके से। Okay. सो Yeah. हाउ कैन यू ट्रीट इट? लाइक अगर वो जेनेटिक्स में है, तो उसे ठीक कैसे किया जाए? Okay. So it's not that, see, genetics की वजह से न्यूरोट्रांसमीटर्स को इम्पैक्ट हुआ, और न्यूरोट्रांसमिशन के अंदर जो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स थी, जो रिडक्शन था, उसकी वजह से डिप्रेशन के थे। और न्यूरोट्रांसमीटर्स हमारे ब्रेन में एक नहीं होता है, बहुत सारे हैं। एग्ज़ैक्टली, वी हैव एग्ज़ैक्टली। सेरोटोनिन, डिफरेंट, वी हैव डिफरेंट। डोपामिन, वी हैव नॉरएपिनेफ्रिन, वी हैव एनकेफ्रिन, देयर हुँ, सो मेनी न्यूरोट्रांसमीटर्स, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। और हुँ, उनकी वजह से द चाइल्ड इज हैविंग डिप्रेशन। ओके, तो आप कह रहे हो जेनेटिक्स की वजह से। सी, इट्स नॉट लाइक कि सिकल सेल अनीमिया कि जिसमें खून हुँ, चढ़ाया जाता है कि एक ब्लड का एक प्रॉपर कंपोनेंट डिसऑर्डर है तो पूरी जिंदगी ही रहेगा, नहीं। हुँ, ठीक है, तो होता क्या है कि उसने जीन्स में वो सब चीज ली, ठीक है, एंड देयर वाज हुँ, अ थ्रेशोल्ड पॉइंट जो ब्रेक हो गया, एंड द बच्चे के अंदर वो ओके, सिम्टम्स आने चालू हो गए। और ओके। ठीक कैसे होता है? देखो, हर टूटी हुई चीज जोड़ी तो जा सकती है, रास्ता पता होना हुँ, चाहिए। एंड देन यू नो दैट एग्ज़ैक्टली। देयर, तो व्हेन वी गिव अ ट्रीटमेंट, वो हुँ, न्यूरोट्रांसमीटर्स के ऊपर हेल्प करता है, ठीक है। ओके। इट कैन बी, सी, जैसे टीबी की ट्रीटमेंट होती है, आप 9 महीने खिलाते हैं, और हुँ, अगर एक्सटेंडेड टीबी है, ठीक है, और रेजिस्टेंट टीबी है, तो वील बी लाइक 2 years खिलाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो हुँ। दवाइयाँ वो उसी तरह से बनाई जाती हैं, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। बेसिकली वो पानी, टारगेटेड होती हैं उस पर्टिकुलर उस पे। यस या यस यस यस। ओके। अभी एंटीबायोटिक्स हैं, वो समझ लीजिए नहाने का पानी है, वो बकेट में हुँ, लोगे आप। पीने का पानी आप ग्लास में हुँ, लोगे, तो वो उस हुँ, अमाउंट में दिया जाएगा। सो दैट्स हाउ द हुँ, अमाउंट इज डिसाइडेड, एंड दैट्स हाउ द हुँ, थिंग्स वर्क। एंड उसकी वजह से दे इम्पैक्ट द ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स, दे, और उसकी वजह से एज इट इज नॉर्मलाइजिंग, जैसे कम्युनिकेशन धीरे धीरे ठीक हो रहा है, बच्चा भी ठीक हो रहा है, ओके। या ठीक है। सो विल गिव अ लिटिल स्मॉल इंटरेस्टिंग। molecules to treat the हुँ, depression in a child, and then we'll take the child on counseling also. We'll do both depending ओके, on the severity, ओके, again depending on the severity. ओके। इट इज़ Yeah. इंटरेस्टिंग, इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, Okay. अब थोड़े से मिसकंसेप्शंस की बात करते हैं। लाइक जो मिसकंसेप्शंस हैं, स्टिग्मा है। लाइक व्हाट्स अ कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट न्यूरोसाइकियाट्री एंड हाउ कैन वी फाइट द स्टिग्मा अराउंड इट? जो मैंने स्टार्टिंग में Yeah. भी आपसे बात की थी, दैट इज़ द टैबू वाला पार्ट। सो लोग काफ़ी ज़्यादा अपने माइंड में अपने से मिसइंटरप्रिटेशंस बना लेते हैं, या फिर मिसइंटरप्रिटेशंस थ्रू गॉसिप्स जो लोग एक दूसरे के बीच में करते हैं कि हमने ये सुना था, ये सुना था। सो वो सारे मिसकंसेप्शंस कैसे हम हटा सकते हैं? पहला मिसकंसेप्शन ये है कि मैं ये दवाइयाँ खाऊंगा तो मुझे आदत पड़ जाएगी, ओके। ठीक है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये है कि मैं इन डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं पागल हो जाऊंगा, ठीक है। तीसरा दैट इज़ द मिसकंसेप्शन पार्ट। ये है कि डॉक्टर खुद पागल होते हैं। चौथा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हम जाते हैं तो सोसाइटी क्या कहेगी। एग्ज़ैक्टली, पांचवा दैट इज़ द मिसकंसेप्शन ये मेन थिंग। है, यस, हुँ, एंड पांचवा मिसकंसेप्शन ये है कि अ, मुझे कैसे हो सकता है, आई एम सो सक्सेसफुल, आई हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स, एंड मुझे कैसे हो सकता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड एग्ज़ैक्टली, दैट द the person we have seen, like Hitler died by suicide. एग्ज़ैक्टली। Sylvia Plath, the most famous writer, she died by suicide. Ernest Hemingway, जो बहुत famous लेखक रहे हैं English British literature के, he died by suicide. हुँ, Abraham Lincoln, उन्होंने, he is the US के president, he had depression. So इस mental health is something that we have to understand that वो किसी को भी हो सकती है issues. हुँ, You have हुँ, mind, you have brain, you can have it. हुँ, हड्डी है तो टूट एग्ज़ैक्टली, सकती है, माइंड है तो टूट एग्ज़ैक्टली। सकता है। सो इतनी सी हुँ, बात है। ये समझने में हुँ, इतने टाइम क्यों हमको लगता है? हमें इतना वक्त इससे लगता है क्योंकि हमें एक ग्लैमराइज वर्ल्ड में ये समझाया गया दैट if you will not do this, you are weak, you are not doing this, you are weak, you are not doing this, you are हुँ, not strong enough for this. So या you मेन्स are डोंट crying. क्राई।
Men don't cry. See, I think सब Exactly. दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज अगर कोई हो सकती है, सबसे प्योर इमोशन हो सकता है, वो है आंसू. You Exactly. are very happy, you cry. You are sad, you cry. You feel overwhelmed, you cry. So cry it out. Hmm. Don't keep it inside, otherwise it will become something Exactly. else. Yeah, that is the point कि अगर हम अपने emotions को अंदर रखते हैं तो that will become something else. And Something else, it will become something else. Definitely, it will become something else. okay. So आपसे ज़्यादा yeah, अच्छा कौन जान सकता है? You are experiencing that. You are yeah, experiencing it in your daily life. yeah, Okay. yeah. Through my patients, yes. There's a question that might people ask sometimes कि how does focusing on sexual health improve the mental well-being? Like what is the correlation between both, and what challenges do you face in addressing it? And you have seen patients who are suffering from this, so what it is all about? See, sexual well-being is very important. Why? Because it's Hmm. first we have to understand that this is a basic need. Okay, Hmm. after adult life, it is a basic need. The person who is not satisfied will be Hmm. so suffered in regular life कि उसकी वजह से भी patient continuous anxiety में रह सकता है. So Hmm. it is a part. First, you have to understand that it is an emotion. Sexual energy is an emotion, and the thing that Okay. you share with your partner, it's a bond that you share with your Okay. partner. And Okay. kahin na kahin, if it is not proper, if it is not going the way a person desires, both the person desires, तो उसकी वजह से एक जो उनका relationship है, it will be Hmm. affected. And over a long period, if your relationship is affected because of sexual issues, वो बाकी सारे domains में भी affect होगा. It will become a Hmm. fight, a quarrel. It will become a sleep issue. It will become a certain anxiety that I'm not good enough. I'm not Okay. proper enough. There's something Hmm. wrong in me, and then they go वो अलग अलग साइट्स पे जाके अलग अलग चीजें और अलग अलग पैतरे और अलग अलग चूरन चटनी ट्राई करके आएंगे. That like there is a Exactly. person वो मेरे पास आए थे and they had, I don't know, there are 20 tablets. 20 tablets with lot of two पता नहीं बहुत बड़े बड़े भसम और चूरन के संग किसी ने उनको कहा था because of the erectile dysfunction. They go to and Quora for all those things. They go to Quora, and then they don't know that Quora doesn't help in that. हाँ तो या जो भी जो इशू चल रहे होते हैं तो दे गो टू द ऑल द डिफरेंट सेटिंग्स और उनको ये समझ नहीं आता कि दिस हैज टू बी सॉल्व्ड. वो वहां से आ रहा है. Hmm. So they both are related. So it's very important Okay. to, सबसे important चीज क्या है? Communication. Don't assume Communication. things. Assume मत करो. उसको Exactly. ऐसा पता चल जाएगा, उसको ऐसा पता क्यों नहीं चला, या उसको ऐसा क्यों नहीं लगा, या उसको ऐसा क्यों नहीं Communication is हुआ. important. Yeah. You have an issue, tell right in there. बता दो, Yeah. बात करो कि this is not proper, so that you can work it out. So वो लंबे टाइम पे problems ना बने. So that's how it starts in बहुत सारे couple में, specifically marriage के starting में ये वाले issues जो होते हैं, बहुत सारे myths जो develop हो जाते हैं, जो clear नहीं होते हैं, it becomes something else. So sexuality, yes, it is very important. उसका सब sexuality का भी core ये है कि आप बात करें. बहुत सारी चीजें सिर्फ उससे हल हो जाती है. लाइक कहते हैं ना, पुराने लोग कहते थे ना दैट बहुत बड़े बड़े शहरों के या देशों के डिसीजन टेबल पे लिए गए हैं. सो या इट इज हाउ इट इज. Okay. So वो actually वैसा है. Okay, it is also a very important thing in Very important. like, yeah. Okay, so now let's discuss about some disorders. There's a disorder that I have read, I guess 1 week ago. Okay. That is bipolar disorder. Like, Okay. what is it actually? Because there are multiple misconceptions about bipolar disorder, and people don't know about it. And Yeah. also there are some symptoms of bipolar disorder that may some people face, but they don't know about it, so they cannot address it. So it is also a very great problem. So let's discuss about bipolar disorder. बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है वो ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हैं कि 0.5 to 0.7% ऑफ पॉपुलेशन में दिख सकता है, या अराउंड 1% वी कैन से, दैट इज 1 in 100, विच इज क्वाइट कॉमन. दूसरी चीज, वो महिलाओं में और आदमियों में दोनों में इक्वल में दिखता है. ऐसा नहीं कि महिलाओं में ज्यादा दिखता है. सो बाइपोलर डिसऑर्डर इज इक्वली सीन इन बोथ मेल एंड फीमेल. दूसरी द थर्ड थिंग, व्हेन वी आर टॉकिंग, देयर इज टू पार्ट. उसको ऐसे समझते हैं बाइपोलर. So there are two polarities we are talking about.
Two दो पोल्स हैं, polarities. एक पोल है ऊपर वाला, जब वो ऊपर वाले पोल की बात करते हैं, दिस इज मेनिया. Hmm. Mania is someone who is ecstatic, extremely happy, they feel godly, they feel that भगवान उनके दोस्त हैं, मित्र हैं, और वो political connections हैं उनके, they cannot sleep properly, वो 2 घंटे 3 घंटे सोते हैं, उसके बाद भी they feel energetic, वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लगते हैं. और Exactly. देर इज, सो लेट्स अंडरस्टैंड विद द स्टोरी. सो मेरे पास एक पेशेंट आते हैं, ही इज अ फूड वेंडर, ठीक है, वो जो है सब्जी का उनका ठेला लगाते हैं वो, और उनको ऐसा लगता है कि उनको मर्सिडीज चाहिए, ठीक है, और वो भगवान से बातें कर रहे हैं, वो मर्सिडीज की बातें कर रहे हैं, मेरे पास तो ये है, वो तिलक लगा के आते हैं मेरे पास, और बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, वो 7 दिन से सोए नहीं है, उनको खाने की उनको जरूरत नहीं लगती है, और उनको ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत पैसा है, वो बहुत दान कर रहे हैं, वो डेली मंदिर जा रहे हैं, और मंदिर में भी खूब सारा दान कर रहे हैं, बच्चों को चॉकलेट्स खिला रहे हैं. वो नॉर्मली ऐसे नहीं है, 7-8 दिन से ऐसे हो गए हैं. सो दिस इज एपिसोड ऑफ मेनिया. Okay. ओके. सेकेंड Okay. इज डिप्रेशन. Okay. डिप्रेशन एंड मेनिया, इसीलिए हम इसको बाइपोलर कहते हैं. दे आर टू पोलैरिटीज. डिप्रेशन जो बाइपोलर डिप्रेशन बोलते हैं हम, इट इज वेरी सीवियर. द पर्सन is sleeping too much, eating too much, not talking to anybody, remaining in their house. It's like a statue जिसको एक घर में रख दिया गया है. Okay. जो खाता है, सोता है, बट बात नहीं करता है, इंटरेक्ट नहीं करता है, सोशल इंटरेक्शंस नहीं करता है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं उसको, वो इरिटेटेड रहता है, और इट्स लाइक उसमें कोई एनर्जी नहीं बची है. They can do, every report is normal, but they don't feel like doing anything. Or they feel that there is no energy left to do anything. So it is very severe. So this is how bipolar is defined. बहुत सारे आदमियों में ज्यादातर मेनिया जो होता है उसके एपिसोड्स ये शुरुआत में दिखते हैं, और औरतों में पहला एपिसोड जो होता है वो डिप्रेशन से चालू होता है. So basically प्रॉपर बाइपोलर होता है वो इन दोनों के साथ ही होता है, लाइक दोनों होने ही पड़ेंगे ना? जरूरी नहीं है. अच्छा. अगर आपको मेनिया है तो हम आपको बाइपोलर डिसऑर्डर इंसान को हम कहते हैं, द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर. इवन वन एपिसोड ऑफ मेनिया इज बाइपोलर डिसऑर्डर. ओके. और हम ऐसे एंटिसिपेट करते हैं कि हो सकता है फ्यूचर में डिप्रेसिव एपिसोड्स आ जाएं. Okay. It is so it's highly like it's treatable. not necessary. It is not necessary. Okay. It is part and it is treatable. लोग ठीक हो जाते हैं. हमारे पास एक पेशेंट आए थे, वो पिछले 12 महीनों से, लाइक 12 मंथ से, जब 7 दिन भी इतने बड़े लगते हैं, तो 12 महीने से वो मेनिया में थे, और उनको लिटरली जब लेकर आए थे तो वो सब कुछ करा चुके थे ऑलरेडी. कोई भी रिलीजियस प्लेस बाकी नहीं रहा था जहाँ पे वो उसको लेके नहीं गए थे. एंड दैट इज द मेन थिंग, जहाँ पर लोग चीजों को बढ़ा लेते हैं और उन्हें इस चीज का एहसास नहीं होता. हाँ, मुझे तो हम यही कहते हैं कि आप दुआ कीजिए पर दावा भी कीजिए. एग्जैक्टली. बैलेंस. पीपल लाइक लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का, बिकॉज यू नो मेनी ऑफ द थिंग्स जो भी आज इंडिया में बाबा कल्चर चल रहा है, सो इट्स द पार्ट कि हमने भी कई वीडियोस देखी हैं, आपने भी देखी होगी. लाइक आई हैव सीन वन वीडियो इन विच लाइक इसकी बात मैंने पिछले पॉडकास्ट में की, लाइक अ वुमन गोज टू वेरी हाई ग्रेड बाबा एंड she said कि I am experiencing these type of things, तो क्या मैं डॉक्टर को कंसल्ट कर लूं पहले? So imagine what that Baba had said. उन्होंने कहा कि नो, डॉक्टर उस चीज को ठीक नहीं कर सकता, तुम मेरी शरण में आओ. एंड आफ्टर दैट आपको पता है कि लाइक उसने जो कुछ बताया था, दैट इज समथिंग अबाउट कि वो बहुत हाईली डिप्रेस्ड फेज में है, एंड शी इज क्राइड. धंधा है ना ये, आपको बिजनेस कैसे मिलेगा? आप दूसरे के पास भेज दोगे तो उस वक्त आपकी इंटेंशन दुनिया को कुछ बेहतर नहीं बनाने की थी. आपकी इंटेंशन ये थी कि आपने उसको एक शरणार्थी की तरह नहीं देखा, आपने उसको एक क्लाइंट की तरह देखा. एंड वहां गलती हो गई, पर ठीक है, इट्स अ कांस्टेंट फाइट. एग्जैक्टली, चलती रहेगी. हाँ, बट दिस नीड्स टू बी लाइक, हम ये पॉडकास्ट क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? जिससे कि ये जो चल रहा है उसको हम फाइट कर सकें, लोगों को अवेयर कर सकें. कुछ चीजों का आंसर, हाँ, बस वही है कि अगर किसी चीज के अंदर आपने कुछ मिक्स कर दिया, ठीक है, रंग
केमिस्ट्री में ना फिनोफ्थिलीन का एक टेस्ट होता था, रिमेम्बर दैट? वो ड्रॉप्स हम लोग करते थे, कंसंट्रेशन करते थे, और हम देखते थे कि Yeah. कौन से ड्रॉप पे उसका कलर चेंज हो जाएगा। जब रिमेम्बर दैट? कंसंट्रेशन इतने पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो कलर चेंज हो जाएगा। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट दैट वाज वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग। उसका हाँ, पिंक सा कलर होता था। तो वो ओके। पता है क्या है कि वो अवेयरनेस है। हम्म You have to keep dropping it, and like there will be also one day it will we change. had done वो titration in which वो कलर उसमें भी तो कलर हाँ, वाला मैं पार्ट होता टाइट्रेशन था की ही जहाँ। बात कर रही हूँ। आई वाज जस्ट नॉट हाँ, हैविंग दैट थिंग इन माय हेड। ओके मैं वो वर्ड नहीं याद नहीं आ रहा था मुझे, ओके थॉट ब्लॉक हो गया था। ओके। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट टाइट्रेशन। हम्म देयर वाज अ वन हम्म पॉइंट कि वो जो है रंग चेंज हो जाएगा, दैट कलर। हम्म सो दैट्स व्हाट अवेयरनेस वी आर ट्राइंग टू डू, कि हम सोच रहे हैं कि कौन से ड्रॉप पे कलर चेंज होगा। exactly. हाँ, Also yeah, this is the thing, and इसी तरह एक personality disorder होता है, multiple personality disorder. So that is also I guess इतना common नहीं है, वो भी बहुत rare ओके। होता है। सो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अभी हम उसको ऐसा कोई डायग्नोसिस नहीं रखते हैं। ये एक पुराना, आप समझ सकते हो, इट्स अ वेरी ओल्ड डायग्नोसिस, जो 15-20 साल पहले लोग उसको ऐसे डायग्नोसिस करके बोलते थे। अब हम उसको बोलते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। Dissociative identity disorder, okay. हाँ, डिसोसिएशन, ठीक है। अभी उसका क्या मीनिंग है, जैसे आपने भूल भुलैया देखी होगी, और भूल भुलैया में वो जो क्या कहते हैं, वो जो करेक्टर है, Yeah, व्हाट वाज द करेक्टर, I don't remember the name. चंद्रमुखी, बहुत लाइक नहीं, चंद्रमुखी तो I guess वो भूत का नाम रहता है I guess. हाँ हाँ, Whatever तो the name, let's say. Yeah. हाँ, सो जो लेट्स जस्ट नेम इट, कि जैसे विद्या बालन जी का जो करेक्टर है उसके अंदर, जब वो भूल भुलैया के अंदर वो डांसर बन जाती हैं, और वो अपनी खुद की आइडेंटिटी भूल जाती हैं, और वो वाली पर्सनालिटी बन जाती है टोटल। जो एक डांसर है, जो बंगाली है, वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है, कि आपकी खुद की आइडेंटिटी आप उसमें लूज करके एक दूसरी आइडेंटिटी जो है आपका ब्रेन बना लेता है। और उसमें जो कारण होते हैं वो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक सडन ट्रॉमा हो सकता है, बचपन के कुछ ट्रॉमा है, जैसे कि ये ग्लास से भरता चला गया, देयर वाज अ टाइम कि एकदम से ट्रिगर आया और वो फैलने लगा ना। तो वो जब फैलने लगा तो वो एक आइडेंटिटी बन गई। वो आइडेंटिटी कोई भी बन सकती है। सो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर अगर हम देखते हैं, फर्स्ट इट इज नॉट वेरी कॉमन, और उसके अंदर हम लोगों ने जो अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेटअप में पेशेंट्स देखे हैं, वो अक्सर डिसोसिएटिव आइडेंटिटी जब उनके अंदर होती है, तो ईदर दे टेक द किसी पितरों का, जैसे एंसेस्टर्स का बन जाके उनके लैंग्वेज में बात करने लगते हैं, उस तरह के होते हैं, या किसी फैमिली मेंबर का बन जाते हैं, या कोई गॉडेस या गॉडली वो बन जाते हैं। सो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में वी सी द आइडेंटिटी बाइफर्केशंस, या आइडेंटिटी पूरा डिसोसिएशंस देखते हैं हम लोग। Exactly. This is my question कि जैसे आपने कहा कि वो एक अलग ही लैंग्वेज बोलने लगते हैं, बट देयर आर सम केसेस जहाँ पर दे टोटली लाइक they are Hindu, like they belong to the Hindu religion, and they suddenly start reading namaz at the night, या फिर जब भी उन्हें वो चीज ट्रिगर करती है. So how does this works? Like it is something like लोग उसे कहते हैं कि like भूत है, but we know that it is not that thing. So how does that work? ओके, ब्रेन जो होता है ना, सबसे खूबसूरत ऑर्गन है, इट्स ब्यूटीफुल, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि even when you are not reading or learning, your brain is learning consciously or unconsciously. Exactly. ठीक है। तो अभी जैसे मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तो भी मैं अपने एनवायरमेंट में जो आसपास की चीजें हैं ना, वो भी मेरा ब्रेन जो है सुन रहा है, समझ रहा है, और कहीं ना कहीं कैप्चर कर रहा है। वो मैं कॉन्शियस में नहीं है मेरे, लेकिन हाँ चल तो रहा है। सो अगर कोई इस तरीके के बच्चा है, या फिर इस तरीके के अगर आपने देखे हैं, तो मतलब अगर वो पूरा, हो सकता है वो लैंग्वेज उसे सुनी है, वो शायद वो लैंग्वेज सुन के बड़ा हुआ है, या उसे आसपास डेली सुबह नमाज सुनी है, उसे कॉन्शियसली नहीं, ब्रेन सुन रहा था, ठीक है, और वो उसके मेमोरीज बना रहा था धीरे 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 धीरे। वो धागे पिरो पिरो के पूरा उसने क्रोशिया का पूरा एक मैट बना दिया है, ब्रेन ने, कॉन्शियस नहीं। एंड सडनली क्या हुआ, कॉन्शियसली नहीं था, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं थे अभी। वो पूरा उसने उसको मैट बना दिया, डिजाइन विजाइन मस्त खूबसूरत सा बना दिया, एंड अभी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रिगर आया या कुछ ऐसी चीजें हुई, क्या हुआ, वो क्रोशियो के धागों के ऊपर पहुंच गया आपका ब्रेन, एंड देन यू आर वो क्या थे, एंड यू बिकम दैट।
So yeah, Okay. it works like that. Your brain is always gaining information at all point of time, even when you are not. Yeah. इसीलिए हम intuitions की बात करते हैं ना, gut feeling. यार कुछ तो लग रहा है, यार कुछ safe नहीं कुछ है, तो या कुछ तो Exactly. something is not right. That something is not right. Why? Because your brain has colored the memories of unconscious part का. उसको पता है कहीं ना कहीं कि ये चीज इस तरीके से हो Exactly. सकती थी and all that. So what gut Exactly. feeling क्या है? वो unconscious learnings है. So yeah, Like- brain is beautiful. like ऐसा होता है ना कि जैसे हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है, सो वो पूरी तरीके से कभी भी यूनिक नहीं हो सकता है, क्योंकि जो भी हम सोचते हैं वो हमेशा वही होता है जो मेमोरी है, जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में ऑलरेडी होती है, उसी से हम इधर-उधर करके एक नई यूनिक आइडिया, जैसे लेट्स से लाइट बल्ब बना। सो लाइट बल्ब का बनना इज़ नॉट लाइक कि उन्हें रात में सपना आया होगा और वो सुबह उठ के लाइट लाइट बल्ब बना दिया। इट इज़ लाइक 999 टाइम्स वो फेल भी हुए थे। सो इट्स लाइक कि अगर ये कहना कि उनको रात में सपना आया था, किसी देवी देवता ने आकर उन्हें बता दिया, तो इट्स जस्ट लाइक कि ऐसा नहीं होता है। ऑल्सो मैंने एक फिलॉसफी पे पॉडकास्ट किया था, तो वी विल टॉकिंग अबाउट फ्री विल एंड डिटर्मिनिज्म। सो देयर इज अ थिंग कि अगर हम एक पे रोड पे चल रहे होते हैं और वहां पर एक पत्थर पड़ा हुआ है छोटा सा, एंड वो हमारे पैर से लड़ जाता है, सो हम तो नहीं चाहते थे कि वो हमारे पैर से लड़े, बट वो हमारे पैर से लड़ा और पैर पे लड़ने के बाद दर्द हुआ। तो क्या हमारी फ्री विल थी उसमें, या फिर वो डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर था? सो इट्स जस्ट लाइक कि हमारी जो साइट है वो सामने है, बट हमारी साइट में वो पत्थर भी है, बट हम उसे कॉन्शियसली ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। अनकॉन्शियसली क्या Yeah. पता ब्रेन को ये चीज पता हो, तो यहाँ पर भी फ्री विल वाला पार्ट आ जाता है। तो इट्स जस्ट कि ये एक थोड़ा सा पैराडॉक्स क्रिएट करता है। Yeah, बट it does. या यू आर राइट कि क्या Free will कहते is हैं। a concept which is actually highly paradoxical. जैसे वो Exactly. कहते हैं ना, आर्किमिडीज जो है वो नहाने गए और वो बाथटब में बैठे और सडनली बॉयंट फोर्स का ऐसा हुआ एंड इज लाइक यूरेका यूरेका यूरेका. एग्जैक्टली So आप न्यूटन की स्टोरी है कि उनके सर पे एप्पल गिरा था, तो पर कहीं भी ये नहीं लिखा है कि उनके सर पर एप्पल गिरा था। इट्स जस्ट कि उन्होंने एप्पल को गिरते देखा था। सो काफी सारी चीजें होती हैं। हम लोग को देयर इज वन कॉन्सेप्ट, यू नो, हम लोग कहानियों से जब जुड़ते हैं तो हम ज्यादा सीखते हैं. एग्जैक्टली। So that is one of the reason हम न्यूटन को उस एप्पल से और आर्किमिडीज को उस बाथटब से रिलेट करते हैं. कहानियां याद रहती हैं, वो एक इम्प्रेशन क्रिएट करती है. एग्जैक्टली अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझाना है, तो देयर आर मेनी बुक्स जहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए स्टोरीज का यूज किया जाता है, फिक्शनल स्टोरीज जो कि वो खुद क्रिएट करता है ऑथर. And it's a beautiful way of teaching. या बिकॉज हमारे ब्रेन को आदत है ना डॉट्स कनेक्ट करने की, सो दैट इज द पार्ट जहाँ पर वो वर्क करता है. या इट इज रियली अ ग्रेट सेशन. बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली. एंड लास्ट थिंग दो कि मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज हाउ यू डील विथ कल्चरल एंड सोशल टैबूज इन योर प्रैक्टिस व्हेन डिस्कसिंग मेंटल हेल्थ, सेक्सुअल हेल्थ एंड एडिक्शन वगैरह के बारे में जब आप बात करती हैं. सो जो टैबूज हैं वो आपको कैसे अफेक्ट करते हैं? मुझे जब आई वॉज इनिशियल इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ माई रेजिडेंसी और तब मैं ये सब चीजें सुनती थी, तो मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत इफेक्ट करता था. आई वॉज एंग्री, यार क्यों, यू नो, ये लोग साइंस का साथ नहीं दे रहे हैं और ये लोग समझ नहीं रहे हैं एंड ऑल दैट. आई यूज्ड टू फाइट. बट मुझे फिर धीरे धीरे ये रियलाइज हुआ कि यू नो, एज यू लर्न, आपको समझ में आता है कि हर इंसान अपना एक बिलीफ सिस्टम लेके बना है, और वो जो बिलीफ सिस्टम है आप उसको टच करोगे तो आप जल जाओगे. वो आ गया है क्योंकि वो बचपन से लगी हुई है और वो सोसाइटी ने उसमें घी डाला हुआ है. तो मोर यू विल टच, मोर यू विल बी लाइक, मैं तो जल गया. आपको क्यों जलना है? आप हाथ भी तो सीख सकते हो. आप आराम से बैठो उसके पास बॉनफायर के साथ और उसको समझो और उनको उनके ही तरीके से समझाओ. एग्जैक्टली. सो लाइक उनको समझाने के लिए उनको समझना पड़ेगा. हाँ, तो मेरे को मैंने जलना छोड़ दिया, मैंने हाथ सेकना चालू किया. सो आई जस्ट सैट अराउंड देम एंड मैंने उनको समझाना चालू किया. एंड मेरी लड़ाई क्या थी? मुझे ये थोड़ी समझाना था कि साइंस बहुत बड़ी है और ये गलत है. नहीं, मुझे तो पेशेंट ठीक करना था. मेरे को कोई और मतलब था ही नहीं. ठीक है, सो मेरी लड़ाई वहीं पे खत्म हो गई जब मैंने हाथ सेकना चालू किया. आई जस्ट अंडरस्टूड द बिलीफ सिस्टम एंड मैंने उनको उस तरीके से समझाना चालू किया दैट सी, आप दुआ करें और दुआ से बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी भी काम करेगी ना. योर बिलीव्स, योर मोटिवेशन वर्क्स विद योर इम्यूनिटी, योर ब्रेन वर्क्स विद इट. तो आप जितना उसके अंदर जोर रहेगा और वो बिलीफ रहेगा, वो कहीं ना कहीं इंसान को अंदर से एक स्ट्रांग वो देता है ना, विल देता है. विल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो ठीक है, आप दुआ भी करें,
आपको जो हम्म धागे पहनने हैं, जो ताबीज पहनने हैं, जहां जाना है, सब जगह जाएं, दवा ना या छोड़े। आप 7 दिन तक या आराम से इनको सब जगह दिखा के ले आए, दवा भी चालू रखें। सो दैट्स ओके हाउ आई वर्क इट, दैट जब वो ओके जितनी भी उनकी दुआएं हैं और जितनी भी उनके मतभेद हैं, मैं उनको रहने देती हूँ। मेरा बस हाँ ये है कि आप जो है थेरेपी और ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें, बाकी कोई लाइक दिक्कत उन नहीं है। हमारा लाइक आपका मोटिव उनसे डिबेट करना है नहीं एक्चुअल में, नहीं, योर ठीक मोटिव करना इज टू, है। हाँ एग्जैक्टली। ऑल्सो हाँ, मैंने पिछले पॉडकास्ट में बात भी की थी कि लाइक जो एंजाइटी अटैक पैनिक अटैक्स में कभी कभी लोग कुछ ऐसी चीजें बताते हैं दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट। लाइक आई फेस्ड an experience of one of my junior that is कि he is saying कि he is like उसके अंदर ही दो पर्सनालिटीज हैं, एक गुड है एक इविल है, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं एंड दैट इज द पार्ट। तो इन द लास्ट पॉडकास्ट द पर्सन जिनके साथ में कर रहा था ही सेड कि जब इस तरह के केसेस में यहाँ पर लोग अपनी एक अलग लैंग्वेज बनाते हैं, वो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो वो एक्सपीरियंस करते हैं, उससे वो आपको समझाने की कोशिश करते हैं। लाइक जो उनके लाइक दैट जूनियर इज लाइक कि वो एनिमेज वगैरह में बहुत इन्वॉल्व है। सो दैट इज द पार्ट जहाँ से वो सारी चीजें उसके अंदर अनकॉन्शियसली आती हैं, और जब वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो सब है तो जब वो आपको बता रहा है तो वो उसी पर्टिकुलर चीज से एक्सप्लेन कर पा रहा है जो भी उसके इसके अंदर कारण हैपनिंग्स हो रही इसके कारण ये भी है क्योंकि मेंटल हेल्थ जो है, ये जो लक्षण है, इनको हमें कहीं नहीं पढ़ाया गया। है। तो जब ये महसूस भी बात करते सही हैं, है। उसके जब हम महसूस करते हैं तो हमें नहीं पता ना कौन सी लैंग्वेज में कौन से शब्द को बोलें। हाँ, हाँ, वो ऑब्वियसली। एक्सपीरियंस हमारे लिए अलग हो जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता वो एक्सपीरियंस ही क्या है ना। और हुँ, अगर वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होता और हमें पता होता कि करिकुलम का पार्ट है, तो हमें पता है कि हमें क्या हो रहा है। हमें नहीं हुँ, पता तो वी विल स्टार्ट गिविंग इट डिफरेंट डिफरेंट नेम। ओके, अब जैसे पानी है, आप यहाँ पे कहीं पुचका है, गोलगप्पा है, हुँ, यहाँ हुँ, पे हुँ, गोलगप्पा हुँ, है, हुँ, वहां पे पुचका है, वहां पे पानी पूरी है, अलग एग्ज़ैक्टली, अलग नाम दे दिए ना उसको। हुँ, ठीक है, यू सो आर हर राइट, एक चीज अलग 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 हुँ, अलग नाम हो गए हैं बिकॉज ऑफ आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हुँ, आपको पता नहीं उसको क्या बोलना है, तो वो आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में उसको बोलेंगे। यू आर राइट, Again, एग्ज़ैक्टली, not every हुँ, panic attack is same and not every depression is same. हुँ, यू It's आर राइट, different. It is impacted with your culture, your personality, your society, your environment, your studies, your intellectual level. या, It's not that easy. ओके, सो या, राइट। सो लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क कि Yeah. डिड यू एवर एक्सपीरियंस्ड these things? Like, I've never Yeah, experienced it. पैनिक अटैक्स, एंग्ज़ायटी अटैक्स, डिप्रेशन टाइप के थिंग्स, डिड यू एवर एक्सपीरियंस दैट? Okay, so हम ये समझते हैं कि I am a very person who have felt lot of emotions in my life, but I've never faced a anxiety or depressive disorder yet. ओके, नहीं बिकॉज़ Yet. देखिए यू हैव सेड कि जब हमें वो चीज़ पता होता है लाइक आपके करिकुलम में है, तो अगर आपके साथ वो पर्टिकुलर डिसफंक्शनिंग या कुछ भी होता है, तो आपको पता है कि ये क्यों हो रहा है, ठीक है? अब आप उसको साइकोलॉजी या फिर इसकी लैंग्वेज में बताएँगी। बट तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग कि हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट? तो No, I've not दैट इज़ द experienced थिंग। it. अभी अपेंडिक्स का ओके, दर्द नहीं हुआ नाइस, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम ऑपरेट नहीं कर सकते। ऑब्वियसली एंड So yeah, नाइस। आई होप कभी हो भी ना, बिकॉज़ दीज़ थिंग्स आर कि वो फिज़िकल से काफ़ी ज़्यादा मेरे हिसाब से वो सीवियर होती हैं, क्योंकि फिज़िकल हम ठीक कर सकते हैं आराम से, हम आइडेंटिफ़ाई कर समझा सकते हैं पाते आराम हैं। Yes. से। एग्ज़ैक्टली, दर्द हो रहा है तो हो रहा है, दवा खाना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। सो ओके, Yeah. सो इट इज़ वेरी नाइस टॉकिंग टू यू दिस एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा नहीं, मुझे एंड बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर हैविंग दिस पॉडकास्ट विद मी, अर्जुन। ओके, बहुत अच्छे ओके, क्वेश्चंस पूछे, मुझे जवाब देने में या बहुत मजा आया। So I hope एग्ज़ैक्टली। या और दिस इज द थिंग कि साइकोलॉजी साइकियाट्री ये सब ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में अगर हम डिस्कस करने लगे तो फिर वो खत्म नहीं होती, दैट इज कि वो चलता ही चला जाता है। सो दैट्स व्हाई हमारे पास कुछ जब मेन डिस्कस करने के जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं हम उन पे भी पॉडकास्ट करेंगे इन फ्यूचर, I hope. Yeah. जो कि आई होप कि काफी ज्यादा यूजफुल होंगे फॉर द व्यूअर्स। तो एट लास्ट सम वर्ड्स जो आप व्यूअर्स के लिए देना चाहती हैं कि इन सारी चीजों के रिगार्ड में, तो डू इट। सबसे इम्पोर्टेंट जो सफर है वो आपका खुद से चालू होता है। किसी और के सफर से खुद को मत देखें, सो वो कॉम्पिटिटिव फीलिंग नहीं आएगी। और दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो यूनिकनेस है आपके अंदर, वो किसी Yeah. और के साथ मिला के देखेंगे तो हमेशा ही यू विल फील सैड। दूसरी चीज,
अगर किसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं या तकलीफ में हैं, तो जस्ट टेक एक्शंस इन योर हैंड्स कि मुझे तकलीफ है। एक्सेप्टेंस जो होता है वो सबसे, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे डिफिकल्टी है या इशू है एंड आई नीड हेल्प, आपने हाफ बैटल जीत ली, यू हैव एक्चुअली वन। और वो बहुत जरूरी है, तो वो बैटल जीतिए। अगर आपको लगता है कि इश्यूज हैं, टेक थिंग्स इन योर हैंड एंड फाइट फॉर इट, वर्क फॉर इट। वो 4 लोग हैं, वो छूट जाएंगे और आपकी 2 आंखें रह जाएंगी, और उन 2 आंखों के साथ अकेले रहना है। तो जस्ट दुनिया में सबसे ज्यादा करेजियस चीज है टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड हेल्प। ओके ओके ओके, इट इज रियली अ वेरी ग्रेट थिंग। और ये चीज आई गेस काफी सारे लोगों को समझने की जरूरत है, काफी सारे क्या, आई गेस सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सो काफी अच्छा लगा इस पॉडकास्ट के बाद, एंड आई गेस कि व्यूअर्स को भी काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। सो हम वापस आएंगे इसी तरह के एक अमेजिंग पॉडकास्ट के साथ। पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पर भी अपलोड हो जाएगा, सो यू कैन ऑल्सो लिसन इट फ्रॉम देयर। बाकी सारे पॉडकास्ट भी हमने काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग किए हैं, साइकोलॉजी पे, फिलोसफी पे, फिजिक्स पे, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट पॉडकास्ट ऑल्सो। सो तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।